નમસ્કાર, રાજનીતિ સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે ભારતીય વાયુસેના દ્વારા ઇન્ડસ્ટ્રી આઉટરીચ 2026 કાર્યક્રમનું કરવામાં આવ્યું આયોજન। કાર્યક્રમનો હેતુ વાયુસેનાની ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને સ્વદેશી ટેકનોલોજી સાથે જોડવાનો અને સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં જાહેર ખાનગી ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવાનો રહ્યો। કાર્યક્રમમાં સંરક્ષણ ક્ષેત્રની સરકારી અને ખાનગી કંપનીઓ, સ્ટાર્ટઅપ્સ, એમએસએમઈ તેમજ સંશોધન સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ રહ્યા ઉપસ્થિત। આ દરમિયાન ડ્રોન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને અન્ય અદ્યતન સ્વદેશી ટેકનોલોજી અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી। ભારતીય વાયુસેનાએ ઉદ્યોગોને ભવિષ્યની ઓપરેશન જરૂરિયાતો અંગે માહિતી આપી અને સંયુક્ત સંશોધન તથા નવીનતા માટે સહયોગ વધારવા કરી અપીલ। કાર્યક્રમ આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનને વધુ વેગ આપવાની સાથે ભારતને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે ટેકનોલોજીકલ રીતે વધુ સશક્ત બનાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પહેલ માનવામાં આવે છે। 200 જેટલી કંપનીઓએ લીધો ભાગ। આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અંતર્ગત દેશની કંપનીઓનું ભારતીય વાયુસેનામાં વધી રહ્યું છે યોગદાન। Of the Indian Air Force to host the industry outreach event here at Baroda, and more than 200 industry partners, we call them partners, we don't call them as industry reps. They have gathered here and we'll be showing them the environment, realistic environment in which Air Force operates, our maintenance people who day in and day out put in such a hard work to keep us flying, and our operators who undertake the operations. Effectively, all spectrums are covered here so that the industry can appreciate those situations and they can offer realistic solution to our problems. And as we all know, we are aligned to government's Make in India policies, and the Air Force is taking all-out efforts to support Atmanirbhar Bharat Abhiyan of Government of India. So I am very glad a very good response has come, and a lot of industry reps, they have been invited and they have come, and also as a part of Vibrate Gujarat, a lot of industry came from there also. So it has come out in a very good manner, and we are very happy to welcome the industry here. And of course, this association of industry and Indian Air Force, we expect that it will flourish in the coming years, और आगे भी इसी तरह से इंडस्ट्री के साथ में हम मेक इन इंडिया के लिए काम करते रहेंगे, और इंडस्ट्री हमारे प्रॉब्लम्स का समझकर हमारे को सॉल्यूशंस देते रहेंगे। तो कितने लोग आज यहाँ पे आए? आज यहाँ पे करीब 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री रेप्स अवेलेबल हैं, एंड उनको सबको हमने कंडक्टेड टूर दिया है, उनको हमने समझाया है कि हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट्स क्या हैं, और इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। वी आर वेरी ग्लैड टू सी। Industry is there, as you know, Air Force operates in all segments. So all segments, you name a domain, all the domains are available. इसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है बड़ा अच्छा और बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन रहा है। 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर, अभी हम भारतीय वायुसेना में उनको इंडस्ट्री पार्टनर बोलते हैं। तो 200 से ज़्यादा भारतीय इंडस्ट्री के जो हमारे पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, और उनको हमने वो सब स्थितियों से परिचित कराया है जिन स्थितियों में भारतीय वायु योद्धा और भारतीय वायुसेना के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी के स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं, सो दैट कि इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर सके कि क्या सिचुएशन है, और जो प्रोडक्ट वो मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं वो प्रोडक्ट किन कंडीशंस में एम्प्लॉय होना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री का इतना उत्साहवर्धक रिस्पॉन्स हमको मिला है, एंड हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आगे भी इंडस्ट्री और एयरफोर्स के बीच में ये एसोसिएशन जारी रहेगा। लेकिन सर यहाँ पे जो लोग आए हैं, अब इससे आगे क्या, मतलब कैसे उनको बाइफरकेट करेंगे कि ये तो हमने बेसिकली इस इवेंट का उद्देश्य है कि इंडस्ट्री को ले जाना और उनको दिखाना कि आप जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीएनडी प्रोग्राम्स हैं, चाहे मेक में हो, आईडेक्स में हो, रेवेन्यू में हो, टीडीएफ में हो, जो आप भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के लिए बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना किन परिस्थितियों में ऑपरेट करती है, तो आप हमको अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट को अच्छे से सूट करेगा। दैट इज द पर्पज। तालमेल बहुत अच्छा बैठ रहा है। वी आर वेरी ग्लैड टू नो दैट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी मोर देन 180 डीएनडी प्रोजेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं जो वेरियस स्टेजेस में हैं, एंड बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, और हमें बिल्कुल विश्वास है कि भारतीय इंडस्ट्री, भारतीय वायुसेना की जो डिमांड है उसको पूरा करने में कामयाब होगी। और डिमांड क्या है सर वायुसेना की? टेक्नोलॉजी में डिमांड है। तो भारतीय वायुसेना की डिमांड्स ऑलरेडी there's a document called Technology Perspective Capability Roadmap which has been released in 2025,
15 साल का रोड मैप है। उसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने कंपेंडियम्स जारी करती रहती है। भारतीय वायुसेना के कंपेंडियम्स भी अवेलेबल हैं। एंड उसके अलावा जो भी डिमांड्स होती हैं वो रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर आती रहती हैं। जो मेक इन इंडिया वेबसाइट पर आती हैं, आईडेक्स में डीआईओ की वेबसाइट पर आती हैं, पीडीएफ में डीआरडीओ की वेबसाइट पर आती हैं, और सारे डोमेन्स में डिमांड्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री हमारे लिए फुलफिल कर पाएगी। एमएसएमई कितने अभी तक इम्प्लीमेंट? ये ऑल दिस रेडी डेटा आई मे नॉट हैव एट द बैक ऑफ माई एंड, but what I am saying is the response has been very, very encouraging.